Good morning, students. How are you all doing today? Good. I hope you all must be fine at your home. Well, we have started your chapter number 2, Microorganisms and Viruses, Friend and Foe. We have completed the beneficial microorganisms and the harmful microorganisms. Today, we will be learning a new topic, that is food poisoning. Well, children, we all know food is very important for all of us. We need energy to do work, and we get this energy from the food that we eat. Well, sometimes what happens if we do not take care of our food, we do not keep our food at safe place, or we do not keep it in a cool and dry place, and what happens? There are certain microbes which grow on that food. बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उस फूड के ऊपर ग्रो करते हैं एंड व्हाट दे डू दे टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट फूड एंड स्पॉइल दैट फूड. वो फूड के अंदर से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें वो ले लेंगे एंड व्हाट दे विल डू दे विल स्पॉइल दैट food. How they will grow on that food, they will multiply on that food, they will produce certain toxins. So this is all about food poisoning. Microorganisms, what they do, they produce toxins. वो कुछ harmful substance होते हैं. Toxin means harmful substances. So they produce certain harmful substances. So directly or indirectly, they are damaging our food. The food so spoiled by microbes or by toxins causes food poisoning. ये जो फूड जो कि स्पॉइल हो गया है, खराब हो गया है, why? Because of the action of microbes on it or by the action of enzymes that are present in that food. And sometimes these microorganisms, what they are doing, they are producing toxins as well. So this causes food poisoning. अगर आप ऐसा फूड कंज्यूम कर लोगे जो जिसको कि माइक्रोब ने पूरी तरीके से स्पॉइल कर रखा है, जिसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स जो हैं वो सीक्रेट कर दिए गए हैं, तो ये फूड जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, हमारी बॉडी को हार्म करने की कोशिश करेगा और उसके सिम्टम्स हमारी बॉडी हमें शो करेगी. So how we will know that we are suffering from the food poisoning? So there are certain symptoms which our body indicates us. So what do you first mean by symptoms? When something abnormal happens inside our body or something is happening out of the track inside our body, then what happens? Our body, it gives us the signals. It shows us some indications that something is going wrong. So those things are known as the symptoms, the indication which our body is giving us regarding anything which is happening abnormally inside the body. All those things are known as the symptoms. So what are the common symptoms? Well, actually symptoms vary from person to person, but there are certain common symptoms which we need to consider. The first one is headache, सर दर्द होगा. Second is fever, बुखार आएगा. Third is vomiting, which is the most common symptom. जब भी फूड पॉइजनिंग होता है तो बॉडी क्या करती है, वो उसको बॉडी से जो भी जिस वजह से फूड पॉइजनिंग हो रही है उस फूड सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है. So vomiting is the most common. Then diarrhea is loose motion. So vomiting and diarrhea are the most common symptoms of food poisoning. उल्टी होना, दस्त होना फूड पॉइजनिंग के symptoms हैं. बस स्टूडेंट्स, आप सब ने भी फूड पॉइजनिंग कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा. ड्यूरिंग रेनी सीजन्स और ड्यूरिंग समर सीजन हम लोगों को बाहर का खाना अवॉइड करने के लिए बोला जाता है. वाई? बिकॉज उस समय बहुत चांसेस होते हैं फूड पॉइजनिंग होने के. बारिश के समय फंगस जो है वो इजीली ग्रो करती है किसी भी ह्यूमिड सरफेस के ऊपर, तो उस दौरान जो है माइक्रोब की ग्रोथ काफ़ी फास्ट रहती है. इवन इन समर व्हाट हैपन्स, जो हम खाना जल्दी से प्रिपेयर कर लेते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो पोटैटोज और ऐसी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है. क्यों? क्योंकि क्या होता है उनके अंदर जो उनके एंजाइम्स वगैरह हैं वो क्या करती हैं, उनकी ग्रोथ जो है उसको डिग्रेड करने का काम कर देती हैं, उनको स्पॉइल करने का काम कर देती है. जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है बहुत फास्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग समर और वो फूड को स्पॉइल करने का काम करती है. इसीलिए बोला जाता है कि बाहर रेस्टोरेंट्स का जो खाना है बारिश में, जो आप ठेले वगैरह पे जो दूसरा जो फूड वगैरह ट्राई करते हो उनको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है. जस्ट बिकॉज
to avoid food poisoning. Well, children, you know very well that food poisoning is caused due to the action of microorganisms, bacteria, and fungi. Now, what are the causing microorganisms? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो रही है? तो फर्स्ट इज स्टेफिलोकोकाई. दिस इज अ बैक्टीरियम. व्हाट इट डज, इट प्रोड्यूस अ हीट रेजिस्टेंट टॉक्सिन. ये एक ऐसा हीट रेजिस्टेंट टॉक्सिन बनाता है कि इवन दो इफ यू कुक योर फूड प्रॉपरली देन टू बैक्टीरिया विल डाई, बट व्हाट विल हैपन, वो जो हीट रेजिस्टेंट टॉक्सिन है वो उस फूड में फिर भी रहेगा. हीट रेजिस्टेंस मीन्स जो हीट को भी टॉलरेट कर सकता है. ऐसा टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है स्टेफिलोकोकाई, जो हीट करने के बाद भी, खाने को प्रॉपरली कुक करने के बाद भी खाने के अंदर प्रेजेंट रहेगा. तो ये टॉक्सिन है, तो एनी हाउ इट विल डैमेज योर बॉडी. सेकेंड इज क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum. जो बैक्टीरियम है, ये जो यूजली कैन फूड होते हैं, जो डिब्बा बंद खाना होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. जब कोई फूड जो है उसको कैन किया जा रहा था, उसको डिब्बे में पैक किया जा रहा होता, तो वैक्यूम प्रोसेस से क्या किया जाता है, एयर जो है, ऑक्सीजन जो है, उसको रिमूव किया जाता है. तो उस समय ये जो बैक्टीरियम होता है क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum, ये क्या करता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करने का काम करता है. अब जब कैन फूड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो ये रैपिडली ग्रो करेगा और ये क्या करेगा, टॉक्सिन सीक्रेट करेगा. ये जो टॉक्सिन है ये क्या करेगा, अगर हम इसको कैन फूड को कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी को हार्म करेगा. हम अगर इस कैन फूड को प्रॉपरली हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर फ्यू मिनट्स, तो ये जो टॉक्सिन है ये जो है उसमें से रिमूव हो जाता है. थर्ड वन इज एस्परजिलस. एस्परजिलस जो है वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है. उस टॉक्सिन का नाम होता है एफ्लाटॉक्सिन. ये एफ्लाटॉक्सिन जो है वो कहाँ मिलेगा, ये जो एस्परजिलस इट ग्रोज ऑन ग्रेन एंड वेजिटेबल्स. एंड ये जो एफ्लाटॉक्सिन है, इसका फंक्शन क्या, इसका रोल क्या रहता है, इट डैमेजेस द लीवर. इट इंटरफेयर्स विद द फंक्शन ऑफ लीवर. तो हम स्टडी कर रहे हैं कि जो कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो ये थे. फूड पॉइजनिंग के रीजन हमने जानने की कोशिश की. तो फर्स्ट रीजन वाज दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से भी हमने स्टडी किया कि विच आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड what kind of food they are poisoning. All right, so the first one was the microorganisms. जो कौन कौन से हैं, सेकेंड क्या है, ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स. वेल यू नो वेरी वेल, जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप विच दे ग्रो इन देयर फील्ड. अब कितनी बार क्या होता है, ये जो पेस्टिसाइड्स होता है ये उसके ऊपर फिर भी जो भी क्रॉप या जो भी फ्रूट या जो भी वेजिटेबल्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर इसकी प्रेजेंस होती है या अवेलेबल रहता है. अगर पेस्टिसाइड ऐसे फूड के ऊपर प्रेजेंट है, उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, जो इवन वॉश करने के बाद भी रिमूव नहीं हो पा रहा है, एंड यूजुअली फ्रूट जो होते हैं वी ईट देम एज रॉ ओनली. हम उन्हें कुक करके नहीं खाते हैं, हम उन्हें ऐसे ही खाते हैं, अच्छे से वॉश कर लेते हैं और हम मान लेते हैं, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि पेस्टिसाइड उन पे से हट गया होगा. बट एक्चुअली आजकल जो पेस्टिसाइड्स हैं वो इतने हार्मफुल हैं कि प्रॉपर वॉश करने के बाद भी वो उसमें से रिमूव नहीं होते हैं. अगर इस तरीके के फ्रूट को हम कंज्यूम करते हैं तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं दे आर केमिकल्स, दे आर हार्मफुल केमिकल्स. ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो दे डैमेजेस आवर बॉडी. थर्ड इज द टॉक्सिन. Microorganisms, they themselves are secreting certain chemical substances which are known as toxins, and these toxins are harmful. ये टॉक्सिन अगर फूड के अंदर उन्होंने सीक्रेट कर लिए हैं, ऐसा फूड अगर हम कंज्यूम करेंगे तो ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाएंगे एंड दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. द लास्ट इज द मेटल सॉल्ट. मेटल सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस होंगे, कब प्रोड्यूस होंगे, जब जो फूड है उसे जिस कंटेनर के अंदर जो है प्रिजर्व करने के लिए या उस पैक करने के लिए हम रख रहे हैं, रखने के हिसाब से, स्टोर करने के हिसाब से, जब उसके अंदर ये फूड है वो रिएक्ट करेगा उस मेटल के साथ, तो कुछ ऐसे मेटल सॉल्ट्स बनेंगे विच आर टॉक्सिन, विच आर हार्मफुल, एंड दे कॉजेज फूड पॉइजनिंग इन आवर बॉडी. सो आई होप चिल्ड्रन फूड पॉइजनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा.
वेल स्टूडेंट्स, आपने अच्छे से फूड पॉइजनिंग जो टॉपिक है वो समझ लिया है. सो यू नो वेरी वेल दैट फूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. हमारे लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. फूड जो हमारी प्लेट तक आ रहा है, उसको इस प्लेट तक आने में यू नो वेरी वेल कि बहुत जो है उसमें एफर्ट्स लगते हैं. फार्मर जो है खूब एफर्ट्स डालता है, उसके बाद वो क्रॉप प्रोड्यूस होती है और फिर अल्टीमेटली वो हमारे घर तक आती है. सो फूड पॉइजनिंग में हमने समझा कि कैसे जो फूड है वो खराब हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है. सो वी नीड टू टेक स्टेप्स टू प्रिजर्व आवर फूड. हम जानते हैं इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, सो वी नीड टू preserve our food. The problem you know very well of food poisoning and how we can overcome that problem. And where is the solution? The solution lies in the topic food preservation. Now, what is food preservation? The name itself indicates or it itself explains what is there in the food preservation. We are preserving our food, so we are using certain steps. With the help of these steps, we are preserving the food which we are consuming. Now, what is the definition of food preservation? The process by which spoilage of perishable food is prevented using certain chemical or physical method is known as food preservation. वो प्रोसेस जिसकी मदद से हम जो स्पॉइल हो रहा है, जो खराब हो रहा है हमारा पेरिशेबल फूड जो है, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, उसे स्टॉप कर रहे हैं कुछ केमिकल्स और कुछ फिजिकल मेथड्स की हेल्प से. नाउ चिल्ड्रन, आपने अपनी डेली जो आपकी रूटीन लाइफ है उसमें आप ऑब्जर्व करते होंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो है हम प्रिजर्व फूड काम में लेते हैं. सिंस फ्रॉम द मॉर्निंग, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग, यू विल फाइंड कि मॉर्निंग में आप जैसे मिल्क ले रहे हो तो मिल्क जो है इट हैज़ सम बैक्टीरिया इन इट. तो व्हाट योर मदर यूज टू डू, शी यूज टू बॉयल दैट मिल्क. उस मिल्क को क्या किया जा रहा है, अच्छे से प्रॉपरली बॉयल किया जा रहा है. हम उसे बॉयल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज है, उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाए, किल हो जाए. अगर बात करें हम वेजिटेबल्स की, अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो वो कहाँ रहते हैं? वी कीप ऑल देम इन रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर में क्यों रख रहे हैं? ताकि जो कूल टेम्परेचर के ऊपर क्या होंगे, इसके वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की सरफेस पे जो भी बैक्टीरियाज होंगे उनकी ग्रोथ फिनिश हो जाएगी, उनकी वहीं पे ही ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी. दूसरा, उनके अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी स्टॉप हो जाएंगी, तो वो फूड को स्पॉइल नहीं होने देंगी. उसके बाद में अगर बात करें पिकल्स की, बात करें केचप की, बात करें हम जैम्स वगैरह जो हमारे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करते हैं उनकी बात करें, दे ऑल आर प्रिजर्वेटिव फूड्स. हमने उन्हें प्रिजर्व कर रखा है. बात करें लेफ्ट ओवर फूड की, जैसे रात को जो खाना हमारा रह जाता है, एक्स्ट्रा अगर बनता है, तो व्हाट वी यूज टू डू, यूज टू कीप दैम इन रेफ्रिजरेटर. हम उसे कूल करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि हम उसे नेक्स्ट डे यूज़ कर सकें और उसके ऊपर किसी तरीके का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी ना हो. तो हम अब इस टॉपिक के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स थ्रू विच वी कैन प्रिजर्व आवर फूड. तो चिल्ड्रन, detail में food preservation, we will be continuing with this topic in your next video. Till then what you need to do, आज आप क्या करेंगे कि आप पूरे दिन अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके का फूड प्रिजर्वेशन घर में जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है, किस किस स्टेप पे आप प्रिजर्व फूड यूज़ में ले रहे हैं. तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की आज कोशिश करिएगा. And now comes your social responsibility. You know very well everything. Children, what you need to do, you need to be at home, you need to be safe, you need to sanitize your hands, you need to wash your hands with soap on regular basis for at least 20 seconds. Do maintain social distancing, avoid things which are coming from outside. So children, be safe, be at home, be fit and healthy. Thank you so much.